اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں یہ آزادی دی کہ ہم تجھے اپنا باپ کہہ کر پکاریں، اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے ہمیں یہ آزادی بھی دی ہے کہ ہم تیرے پاس آئیں۔ تو نے ہمیں جگہ کی قید سے آزاد کیا ہے، اور تو نے ہمیں یہ فضل دیا کہ جہاں بھی ایماندار جمع ہوں، یسوع کے نام سے جمع ہوں، تو اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ خدا ہم اپنی حضوری سے اس جگہ پر ہمیں برکت دے۔ جتنے لوگ یہاں پر عبادت کے لیے آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں، سبھی پاک روح کی معموری سے بھر جائیں، تاکہ پاک روح سے معمور ہو کر آج کی عبادت سے یسوع کے نام کو جلال مل سکے۔ خدا جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا انہیں بھی پاک روح سے معمور کر۔ خدا پاک روح، ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں اور تیری رہنمائی کرتے ہیں، تیری رہنمائی مانگتے ہیں، تاکہ تیری رہنمائی کے وسیلے سے آج کی عبادت سے صرف اور صرف یسوع کا نام ہی سربلند ہو۔ خدا تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، ہمارے دھیان اور خیال تیری طرف لگ جائے، دنوی سوچیں اور فکریں یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ اور جتنے لوگ آج اس عبادت میں کسی دکھ، پریشانی، تکلیف اور بیماری کے ساتھ شامل ہیں، اس عبادت کے وسیلے سے تسلی، اطمینان اور معجزات پائیں۔ خدا آج جہاں بھی لوگ عبادت کے لیے جمع ہیں، خدا تو اپنے لوگوں کی حفاظت کر، انہیں برکت دے۔ جہاں بھی تیرے خدام تیرے کلام کو پیش کریں، ان کے وسیلے سے بھی یسوع کا نام سب بلند ہو اور ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ ہو۔ خوائر کے لیے بھی خدا دعا کرتے ہیں تیرے پاک روح سے معمور ہو جائیں، پاک روح کی مدد کے وسیلے سے ہمارے رہنما بن سکیں، ہمارے مددگار ہو سکیں، تاکہ ان کی مدد میں، ان کی رہنمائی میں ہم حمد و ثنا میں تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔
ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کمواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارحام میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 51 گائیں گے۔ زبور نمبر 51 تیجا حصہ، زبور نمبر 51، زبور نمبر 51 تیجا حصہ۔ یارا میرے پاک خدا بزرگی تیری کراں گا۔
کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں پادری مسلم صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہم خداوند کا شکر کریں گے، خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم اس کے مقدس دن پر اکٹھے ہو سکیں۔ دعا کریں گے خداوند اس دن کو، اس عبادت کو ہم میں سے ہر ایک کی برکت کا باعث بنائے۔ ہم اس جگہ کے لیے، ایف سی کالج کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہوئے دعا کریں گے کہ خداوند اس ادارے کو برکت دے، اس ادارے کو چلانے والے انتظامی افسران، فیکلٹی اور سٹاف برکت پائے تاکہ ان کے وسیلے سے یہ ادارہ اور ترقی کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے، خداوند ہمارے ملک میں امن، سلامتی اور سیاسی استحکام کو قائم کرے۔ ہم پوری دنیا میں امن و سلامتی کے لیے دعا کریں گے، اور خاص طور پر ہم پاکستان میں اور پوری دنیا میں مسیحوں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند مسیحوں کو برکت دے، ایمان میں مضبوط کلیسیا اور زندہ کلیسیا اور گواہی دینے والی کلیسیا بنائے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہم خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکائے ہوئے دعا کریں۔ اے خداوند ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں روتنی کے ساتھ تیرے حضور جھک کر تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خاص دن کے لیے جو تیرا پاک سبت ہے، اور خداوند تیرے لوگ جو تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ تیرے حضور سب کے سب جمع ہوئے تاکہ تیری پرستش کریں، تیرا شکر ادا کریں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں جتنے لوگ تیرے حضور موجود ہیں ان سب کو بڑی برکت دے اور اپنے پاک روح کی رہنمائی انہیں بخش، اور خداوند جتنے آنے والے ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی سلامتی کے ساتھ تیرے گھر میں آئیں، تیرے لوگوں میں شامل ہو کر تیری پرستش کر سکیں، تیرا رحم تیرا فضل سب پر رہے۔ خداوند ہم اس ادارے کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو کرسچن یونیورسٹی ہے، اور اس ادارے کے ذریعہ سے خداوند تیرے لوگ جو ہیں محسوس کرتے ہیں کہ تو اس ادارے کے وسیلہ بھی اپنے نام کو جلال دینے میں قادر ہے، اور خداوند منت کرتے ہیں کہ سچ مچ یہ ادارہ تیرے جلال کا وسیلہ بنے، اور خاص طور پر خداوند جو لوگ تیرے ہیں اس ادارے میں رہتے ہیں ان سب پر تیرا رحم اور فضل ہو، اور ہم خاص طور پر تیرا شکر کرتے ہیں اس خاص جگہ کے لیے جو کالج کے ہال کے طور پر ہے، اور ہم یہاں پر جمع ہو کر تیری موجودگی کو جانتے ہوئے تیری پرستش کرنے کے لیے جمع ہے۔ تیرا شکر ہو، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، یہ ادارہ بھی خداوند تیرے جلال کا سبب بنے، اور خاص طور پر جتنے لوگ اس میں کام کرنے والے ہیں وہ سب کے سب خداوند تیرے جلال کو ظاہر کرنے کا وسیلہ ہوں، اور اس جگہ پر رہتے ہوئے اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتے ہوئے تیری گواہی کو دے سکیں۔ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہو۔ ہم خداوند تیرے حضور تیرا شکر کرتے ہیں ملک پاکستان کے لیے بھی جس میں ہم بستے ہیں، ہم اس کی سلامتی تیرے حضور تجھ سے چاہتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ اس ملک میں سلامتی ہو، صلح ہو، جتنے لوگ اس میں رہنے والے ہیں ان سب پر تیرا رحم اور فضل رہے، اور وہ امن کے ساتھ رہ کر تیرا شکر کر سکیں۔ ہم خداوند صلاح صدقان کے لیے بھی تیرے حضور دعا کرتے ہیں جو اس وقت بڑے نقصان میں ہیں، لیکن خداوند تو ان کو سنبھالنے والا، ان کو خداوند ہر طرف سے ان کی ضرورتوں کو تو ہی پورا کرنے والا خدا ہے۔ ہم تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ تو ان سب پر اپنا رحم کر۔ ہم عالمگیر کلیسیا کے لیے بھی تیرے حضور دعا کرتے ہیں جس کو تو نے خداوند ہر جگہ پر قائم کر رکھا ہے، کیونکہ تو کسی جگہ کو بھی بے گواہ نہیں چھوڑنا چاہتا، اور کلیسیا ہر جگہ تیری موجودگی کا ثبوت اور تیری گواہی کا وسیلہ ہے۔ تو خداوند کلیسیا کو بڑی برکت دے، اور خاص طور پر جو مشن تو نے کلیسیا کے سپرد کیا ہے کہ وہ تیرے بیٹے یسوع کی انجیل ہر ایک کام تک پہنچائیں، اس کے لیے تو اپنے لوگوں کو استعمال کر۔ آج کی یہ رفاقت خداوند، آج کی یہ عبادت تیرے جلال کا سبب ہو، اس میں خداوند تو سب کو اپنی موجودگی کا گہرا احساس بخش۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندہ خدا ہے اور ہر جگہ موجود ہے، تو یہاں پر بھی ہے۔ ہم سب تیری موجودگی کو جانتے ہوئے دل سے تیرے حضور تجھے سجدہ کر سکیں، اور دل سے خداوند پورے طور پر تیرے کلام کی طرف رجوع کر سکیں،
اور اپنے دلوں میں اس کو جگہ دے سکیں تاکہ تیرا کلام ہماری زندگی کا حصہ بنے اور اسی طرح ہم زندگی بسر کرتے ہوئے ہر جگہ تیری گواہی اور تیرے جلال کا سبب بنے۔ تو ہم سب کے ساتھ ہو، اس عبادت میں تو ہمارا ہادی ہو، ہماری دعا کو سن۔ یہ سب کچھ ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور 103 گائیں گے۔ رحمت نال ہے بھریا ہویا پاک یہوہ ساڈا، زبور 103 دوجا حصہ، اور اس کے ہم 15ویں مصرے تک گائیں گے، 9ویں مصرے سے لے کر 15ویں تک۔ زبور 103 103 دوجا حصہ، رحمت نال ہے بھریا ہویا پاک یہوہ ساڈا۔
सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं और यीशु के नाम से, जिंदा खुदावंद के नाम से दुआ मांगते हैं, मुतफिक होते हैं, तो मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जिन लोगों ने दरख्वास्त किया कि उनके लिए कलीसिया मिलकर दुआ करे, उन्हें खुदावंद के हुजूर में लाएं और उनकी दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जो जिंदा है और जिसने मौत पर फतह पाई है। तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बेटे यीशु को वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है, और खुदावंद उसके नाम के वसीले से ही इस दुनिया में नजात की खुशखबरी है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बेटे यीशु के नाम से ही हम फतह पाते हैं। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम यहाँ पर तेरी हजूरी में मौजूद हैं और अपने आप को खुदावंद तेरी हजूरी में पेश करते हैं। तू हम में से हर एक को छू, हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तुम्हें छू और हमारी जिंदगी में मौजज़ा कर। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीले से हम शिफा पाना चाहते हैं। खुदावंद हम तेरा फजल मांगते हैं, तू हमें छू। हमारी तमाम ऐसी बीमारियां, कमजोरियां जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, या जिन्हें डॉक्टर्स भी डायग्नोस नहीं कर सके, खुदावंद उन सब के लिए तेरे बेटे यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। खुदावंद, हमारा ईमान है कि तू अपने फजल से अपने लोगों को बरकत देता है। खुदावंद, तूने हमें बनाया है, तू हमारे जिस्म के हर एक उज़्व से वाकिफ है, उसके फेल से वाकिफ है। जो भी हमारे जिस्म में कोई डेफिशिएंसी है, कमजोरी है, तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। तू छू खुदावंद और शिफा दे। हमारी कलीसिया में खुदावंद जो लोग बीमार हैं, उनको भी तेरी हजूरी में याद करते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस जीनत के लिए, इसी तरह से खुदावंद हम बेटी कोमल के लिए दुआ करते हैं, चेरुशा के लिए दुआ करते हैं, इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस रोजी बशीर के लिए, इसी तरह से बेटी नीरिया के लिए, बहन शबनम के लिए, मिसेस नजीर जियाई के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, मिसेस सरवर के लिए, इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई असगर डैनियल साहब के लिए, भाई ऑगस्टीन के लिए, भाई शहजाद के लिए, भाई नदीम जॉर्ज और भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। और इसी तरह से खुदावंद और भी जितने लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं, बेटी सना के लिए भी शिफा मांगते हैं। तो हर एक को छू, हर एक की जिंदगी में मौजज़ा कर। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सभी शिफा पाएं। और खास तौर पर खुदावंद आज कल जो डेंगू का वबा, डेंगू की वबा है, जिसके बायस बहुत से लोग बुखार की हालत में हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सभी के लिए शिफा मांगते हैं। जो लोग इस वक्त वायरल इन्फेक्शंस की जद में हैं, जो लोग बुखार की जद में हैं, उन सब के लिए यीशु के नाम से मौजज़ा मांगते हैं और अपनी कुव्वत और अख्तियार से नहीं बल्कि यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में ही पता है और यीशु के नाम में अख्तियार है। इसलिए यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि हर एक बीमारी हमारे जिस्मों से और जो लोग बीमार हैं उनके जिस्मों से जाती रहे। खुदावंद, तू हम सब की हिफाजत कर। हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, खुदावंद उनके लिए भी यीशु के नाम से बरकत मांगते हैं। तेरी मेरास उन्हें मिले, तेरा फजल उन पर जारी हो। तूने छू खुदावंद, और तेरे फजल के वसीले से उनकी जिंदगी में ये बड़ा मौजज़ा हो और तेरी कुदरत का तजुर्बा वो भी करें। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जब एक ज़रूरी ऐलानात हैं, शादी की पुकारे। सिनोबल सफदर वर्ल्ड सफदर निथानियल, उम्र 35 साल, हालत कमवारी, बहार कॉलोनी, कोट लखपत, लाहौर की रहने वाली की शादी इब्राम वर्ल्ड मुजफ्फर फेरोज, उम्र 35 साल, हालत कमवारा, उमरपुरा, लाहौर के रहने वाले के साथ 18 नवंबर 2022 को होना करार पाई है। और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। सोनिया रॉजर, डॉक्टर रॉजर दीता, उम्र 31 साल, हालत कमवारी, बहार कॉलोनी, लाहौर की रहने वाली की शादी नबील शाद वर्ल्ड अनायत शाद, उम्र 42 साल, हालत कमवारा, बहार कॉलोनी, लाहौर के रहने वाले के साथ 27 नवंबर को होना करार पाई है। और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना जरूरी है। शाहिरा जावेद, डॉक्टर जावेद, उम्र 25 साल, हालत कमवारी,
بہار کالونی لاہور کے رہنے والی کی شادی شارون آگسٹین مائیکل عمر 32 سال حالت کموارہ رحمان پورہ لاہور کے رہنے والا کے ساتھ 4 دسمبر 2022 کو ہونا قرار پائی ہے۔ یہ شادی کی پہلی پکار ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایسا سبب معلوم ہو جن کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں باندھا جا سکتا تو ابھی بتانا ضروری ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش ہونا ہوگا۔ اس وقت ہم خداوند کے کلام کو سننے سے پہلے دعائیہ روح میں گیت گائیں گے، زبور گائیں گے، زبور 85، زبور 85۔ میں گل خدا دی سنا گا جب کرے گا کلام۔ اس کے ہم 3 مصرے گائیں گے، 8واں، 9واں اور 10واں۔ زبور 85 دوجا حصہ۔ خداوند کے کلام کی تلاوت کے لیے کھڑے رہیں گے اور نئے عہد نامے سے دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ دی بک آف ریویلیشن چیپٹر 2 ورسز 8 to 11۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب، 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک، اور اس حصے کی تلاوت کرنے میں ہمارے رہنمائی بیٹی رخسار ذکریہ کریں گی۔ مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب، 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے، جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے،
اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کی دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ آمین۔ تشریف رکھیں، آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ازلی ربی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہو سکیں۔ تیرے اس مقدس دن کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند، ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں، کم علمی کا اقرار کرتے ہیں۔ خدا پاک روح، ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں اور اپنے ذہنوں کی تدبیر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند، تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو دے، ہمارے خیال اور دھیان تیری طرف لگ جائے۔ آج کے کلام سے ہم برکت پائیں، ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارے دلوں کو تیار کر یسوع۔ خدا پاک روح، میں اپنے آپ کو بھی تیرے تابع کرتا ہوں، تو رہنمائی کر تاکہ تیری آواز تیرے لوگوں تک پہنچے، یسوع کے نام سے آمین۔ ہماری سیریز جو ہے ہم کچھ دیر کے لیے اس سے الگ ہوئے تھے کیونکہ ہمارے پاس کچھ گیسٹ سپیکرز تھے جو گزشتہ دنوں میں خدا کے کلام کو ہمارے درمیان بانٹنے کے لیے آتے رہے۔ ہم واپس اپنی سیریز کی طرف آج آئے ہیں اور ہم زندہ کلیسیا کی خوبیاں سیکھ رہے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے، جس میں آگے روزانہ ہر اتوار ہم ایک نئے ٹاپک کو دیکھتے ہیں، جو ایک خوبی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا کیونکہ جو سیریز کا عنوان ہے وہ ہے زندہ کلیسیا کی خوبیاں، کیریکٹرسٹکس آف اے لیونگ چرچ، کہ جو زندہ کلیسیا اپنے آپ کو کہہ سکتی ہے، جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم لیونگ چرچ ہیں، اس میں کیا خوبیاں ہوں۔ اگر ہم کلیسیا ہونے کا، خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، اور بڑی دلیل کے ساتھ خدا کا شکر ہے ہم یہاں پر یہ کلیم کرتے ہیں لوگوں میں، اپنے ارد گرد دوستوں میں، کولیگز میں، تو اس کلیم کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں وہ خوبیاں ہوں جو ایک ایماندار کی خوبیاں ہیں، جو زندہ کلیسیا کی خوبیاں ہیں، جو خداوند ہم سے چاہتا ہے۔ اور آج بھی ہمیں ایک اور نئے ٹاپک میں سے سیکھنا ہے، اور اس کے لیے مکاشفہ کی کتاب میں سے سمرنا کی کلیسیا کا انتخاب ہے۔ خاص طور پر ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ جب مکاشفہ کی کتاب کی سیریز کو دیکھ رہے تھے، کلیسیاؤں کے بارے میں سیکھ رہے تھے، تو اس وقت ہم اس میں سے سیکھ چکے ہیں، اور یہ 7 کلیسیاؤں میں سے 2 کلیسیاں ایسی ہیں جن کی خداوند یسوع مسیح نے تعریف کی ہے۔ 7 کلیسیاؤں میں سے 5 کلیسیاں ایسی ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو 5 کلیسیاں آپ کو ایسی ملیں گی جن میں سے خداوند یسوع مسیح نے خامیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، خامیوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تم میں یہ خامی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ ویکنیس ہے، یہ گناہ ہے۔ اور یہاں پر سمرنا کی کلیسیا اور فلدلفیا کی کلیسیا، یہ 2 کلیسیاں ایسی ہیں جن کی یسوع نے تعریف کی ہے، اور اس میں سے آج سمرنا کی کلیسیا کے حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو کلیسیا کی خوبیاں ہیں، ان میں سے عنوان ہے a rich church، امیر کلیسیا۔ جب امیر کا لفظ آپ کی سماعتوں سے ٹکرایا ہے، یا جب ہم عمارت کے بارے میں سنتے ہیں، ریچنس کے بارے میں سنتے ہیں یا سوچتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آج پادری صاحب کلیسیا کے امیر ہونے کے بارے میں بتانے لگے ہیں، کہ کلیسیا کے ہر ایک ممبر کے پاس دولت ہو
और ज्वेलरी जेवरात हो, गाड़ी हो, तो ये एक खूबी है। क्योंकि जब टॉपिक की तरफ देखें तो अ रिच चर्च इज अ लिविंग चर्च। अगर इसको हम देखें तो इसका मतलब ये है कि अमीर कलीसिया जो है वो जिंदा कलीसिया है। लेकिन आज हम इस रिचनेस को, अमारत के लफ्ज को जब हम ईमान के हवाले से इस्तेमाल करते हैं तो एक और अंदाज में देखेंगे कि जिंदा कलीसिया कैसे अमीर कलीसिया बनती है। क्या अमीर सिर्फ होना गाड़ी, घर, पैसे, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, ये सब कुछ है, या रिचनेस इससे कोई और अलग बात है जो खुदा के कलाम में खुदा की नजर में है? यहां पर नवी आयत में लिखा है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं मगर तू दौलतमंद है। यू आर रिच। स्मुरना की कलीसिया को यीशु कहते हैं कि तू दौलतमंद है। हालांकि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। हालत क्या है? मुसीबत में है, गरीबी है, लान तान इर्द गिर्द के लोगों की, यहूदियों की, गैर लोगों की, जेंटाइल्स की, दोनों की तरफ से आजमाइशें हैं, लान तान है, परसिक्यूशन है, गुर्बत है, फाइनेंशियली क्राइसिस में से ये कलीसिया गुजर रही है। लेकिन क्या कहा यीशु ने? यू आर रिच। तू दौलतमंद है। इसी के मुकाबले में लुदीकिया की कलीसिया को जो पैगाम है तीसरे बाब में, वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। लुदीकिया की कलीसिया एक अमीर कलीसिया है और वो क्लेम भी करती है। और यहां पर जब लुदीकिया की कलीसिया का खत लिखा गया तो उसमें 17वीं आयत में लिखा है तीसरे बाब की, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं। लुदीकिया के लोग रिच लोग थे, दौलतमंद लोग थे और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है। यहां पर जो अमीर कलीसिया है उसको यीशु ने कहा कि तू कमबख्त, खार, नंगा और अंधा और मोहताज है। और दूसरी तरफ जो स्मुरना की कलीसिया जो दुनियावी तौर पर गरीब है, उसको यीशु कहता है कि तू दौलतमंद है। हम दौलत के बारे में देखते हैं कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दौलतमंद कहा है जो कि गरीबी और मुसीबत में है। स्मुरना की कलीसिया के हालात जो थे उसमें ये यीशु ने उसकी तस्वीर कशी की है कि मुसीबत भी है, गुर्बत भी है, लान तान है लोगों की तरफ से, लोग उनको डिस्क्रिमिनेशन होगी या लोग उन्हें तंग करते होंगे, उनको तासुब का सामना करना पड़ता होगा, गरीब लोग होंगे, कारोबार में इतने अच्छे नहीं होंगे या नफरत के बायस शायद कारोबार में तरक्की ना कर पाते हों। तो इन हालात को देखकर आप जायजा ले सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं कि कलीसिया किन हालात में से गुजर रही होगी। कलीसिया कोई मसीही लोग कोई काम नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते, मसीही लोगों को मुखालफत का सामना है, डिस्क्रिमिनेशन है, तासुब है, बायसनेस है और दूसरे लोगों की तरफ से इज़ार सानिया है, मुसीबत है। तो ऐसे हालात में ये कलीसिया क्या कर रही होगी? इर्द गिर्द के लोग रोमी शहनशाह के वफादार हैं, यहूदी लोग भी रोमी शहनशाह की वफादारी के मुकाबले में इनको लान तान का निशाना बना रहे हैं। इसीलिए इसका आगाज यीशु ने इसका किया, जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। बहुत से लोग, गैर कौमों के लोग और यहूदी लोग रोमी शहनशाह को मुकम्मल हाकमियत और कुल अख्तियार का मालिक समझते हैं और मसीही लोगों को उन्हीं से डराते हैं। लेकिन यीशु का कह रहा है जो अव्वल और आखिर है, खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को कहता है कंपैरिजन विद रोमन किंग, कि जो रोमियो का बादशाह है, रोमन बादशाह है, जिनसे मसीहों को डराया जा रहा था, उसके मुकाबले में मसीही जिस पर ईमान रखते हैं वो क्या है? अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, जो मर गया था और जी उठा है,
दुनियावी बादशाह आते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी बादशाहत को ज़वाल आ जाए या फिर वो मर जाए। लेकिन जो मसीहों का बादशाह है, जिस पर मसीही ईमान रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जो अव्वल और आखिर है, वो मर गया था और जी उठा है, वो जिंदा है, वो ये फरमाता है। कौन कह रहा है? जो हकीकी बादशाह है। कौन उन्हें कह रहा है कि तुम दौलतमंद हो? जो हकीकी बादशाह है, जिसके पास हाकमियत है, जिसके पास पूरी दुनिया का अख्तियार है, जिसके पास जिंदगी का अख्तियार है, जिसने मौत पर फतह पाई है, वो स्मुरना को कलीसिया को कहता है कि यू आर रिच। और अमानत क्या है? दुनिया में रहते हुए अमानत दौलत ही है। हमारे लिए, इंसानों के लिए, दुनिया के लिए अमीरी पैसा है, खजाना है, खुशियां हैं। दुनियावी तौर पर खानदानों में पैसे की रेल पेल जो है वही दुनियावी बरकतें या दुनियावी खुशियां हैं या दौलत है। लेकिन कलाम मुकद्दस में दौलत जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरफ इशारा करती है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 6 बाब और उसकी 19 में लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकल लगाते और चराते हैं। ईमानदारों के लिए दौलत खुदावंद का फजल है। ईमानदारों के लिए दौलत खुदा का रहम है। ईमानदारों के लिए सबसे बड़ी दौलत नजात है। ईमानदारों के लिए सबसे बड़ा खजाना खुदावंद के अहद है जो उसने अपने लोगों के साथ किए हैं। खुदावंद के लोगों के लिए सबसे बड़ी मेरास वादों का वारस होना है, बादशाही का वारस होना है। खुदावंद के लोगों के लिए सबसे बड़ी अमीरी ईमान की दौलत है। खुदा के लोगों के लिए दुनियावी चीजें सानवी हैसियत रखती है। खुदा के लोग इस दुनिया में गुर्बत में जिंदगी गुजार सकते हैं। गरीबी हो सकती है, पैसे की कमी हो सकती है, कारोबार नहीं कर सकते। बड़ी दफा लोग गिला करते हैं कि क्रिश्चियंस का कारोबार नहीं चलता, काम नहीं चलता। अगर आप इसको स्मुरना की कलीसिया के साथ रिलेट करें तो यीशु के ये अल्फाज मेरे और आपके लिए यू आर रिच, क्योंकि हमारे लिए ईमान दौलत है। हमारी मेरास, हमारी विरासत खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम अहद के वारिस हैं, वादों के वारिस हैं, बादशाही के वारिस हैं, खुदावंद के फजल के हकदार हैं। खुदावंद के फजल और रहम को, निजात को अपने लिए रखते हैं, जिससे दुनिया के अरबों लोग नावाकिफ हैं। हम अक्सर कहते हैं कि बड़े अमीर लोग होते हैं, खानदान अमीर हैं, अपने औलाद को मुंतकिल करके जाते हैं बड़ी विरासत। हमारे वालिदैन गरीब थे, वो हमें कुछ दे कर नहीं जा सके, लेकिन हमारे वालिदैन ने जो हमें दिया है वो लोग नहीं दे सके। हमें ईमान की दौलत ट्रांसफर हुई है, मुंतकिल हुई है, और हमें बादशाही का वारिस बनाया गया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। और इसीलिए यीशु ने स्मुरना की कलीसिया को कहा, मैंने पहले भी अर्ज किया कि सिर्फ 2 कलीसियाएं शाबाश की हकदार ठहरी। 7 कलीसियाओं में से परसेंटेज देखें कि 5 कलीसियाएं ऐसी हैं जिनमें खामियां, गुनाह हैं और उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं यीशु। लेकिन 2 कलीसियाएं ऐसी हैं जिनकी तारीफ हो रही है, लेकिन दुनियावी तौर पर उनके पास कुछ नहीं है। स्मुरना की कलीसिया के पास दुनियावी तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन आसमान पर खजाना है। खुदावंद की नजर में वही तारीफ के लायक हुए हैं जिनके पास दुनिया में कुछ नहीं था। इन दोनों में स्मुरना और फिलदेल्फिया की कलीसिया है। खुदा किसको बरकत देता है? खुदा के नजदीक अमीर कौन है? जिसके पास निजात का वादा है, जिसके पास खुशखबरी है, जिसके पास यीशु है, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, जो अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और जिंदा है, जिसने मौत पर फतह पाई है। वो सबसे बड़ा खजाना है जो मेरे और आपके पास है। और इस बात ने यीशु का स्मुरना की कलीसिया में मौजूद होना उनकी अमानत थी कि स्मुरना की कलीसिया के पास
यीशु है, जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। इसके बाद मुसीबत है, नाकतान है, गरीबी है, परसिक्यूशन है, और ये कैसी दौलत है। कोई भी शख्स इसको दौलत तो नहीं कह सकता। धनवीर शख्स जो जिस्मानी तौर पर सोचता है, जो जिस्म के लिहाज से सोचता है, उसके लिए दौलत नहीं है, मुसीबत है, परेशानी है। लेकिन यीशु ने इसको भी मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, ये इकट्ठा एक ही सेंटेंस है, मगर तू दौलतमंद है। अगर मुसीबत भी है, परसिक्यूशन भी है, तो फिर भी तू मुबारक है। मुकद्दस मत्ती यीशु की मार्फत लिखी गई इंजील के 5वें बाब में जो पहाड़ी वास है, मुबारक वादियां, इन मुबारक वादियों को जब हम देखते हैं तो इनमें जितनी मुबारक वादियों के लिए कंडीशंस हैं, वो कोई भी हमें अगर हम उसको दुनियावी तौर पर सोचें तो वो सारी फिक्र और परेशानियों से भरी हुई है। मुबारक है वो जो गमगीन है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, मुबारक है वो जो हलीम है, वो जो रास्तबाजी के भूखे प्यासे हैं, जो रहम दिल हैं, वो जो पाक दिल हैं, वो जो सुलह कराते हैं, जो रास्तबाजी से सबब से सताए गए हैं। ये सारी इनके साथ साथ एक एक मुबारकबादी है, एक एक ब्लेसिंग है। तो ये मुबारकबादी को अगर हम कंडीशन को देखें, उन सब को आप देखेंगे कि अगर सुलह करवानी है तो दुख में से गुजरना है, अगर रहम करना है तो अपने आप को दुख में से गुजारना है, अगर पाकीज़गी में की जिंदगी गुजारनी है तो अपने आप को दुख में से गुजारना है, अगर हमने हलीमी की जिंदगी गुजारनी है तो अपने आप को नीचा बनाना है, अगर गमगीन है तो दुख में से गुजर रहे हैं। इन सारी बातों में हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी बात जो है वो दुनियावी तौर पर अगर हम सोचें, जिस्मानी तौर पर सोचें, तो ये सारी बातें तकलीफ में से गुजरने वाली हैं। लेकिन नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हर एक के साथ एक बरकत जुड़ी हुई है। और ये हकीकी मुबारकबादियां हैं, ये दुनियावी मुबारकबादियां नहीं हैं जो आर्जी हैं, ये दुनियावी बरकतें नहीं हैं, ये हकीकी बरकतें हैं, ये हकीकी मुबारकबादियां हैं। और उसके आखिर में 10वीं आयत और 11वीं आयत जो है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और फिर 11वीं आयत में लिखा, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे। और स्मुरना की कलीसिया के साथ यही हो रहा था। स्मुरना की कलीसिया के जब हम हालात को देखते हैं तो स्मुरना की कलीसिया के हालात को देखते हुए लिखा है, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूं। यहां पर क्या लिखा यीशु ने, जब लोग तुमको लान तान करेंगे, फॉर माय सेक, मेरे सबब से तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। हमें एक बड़ी बरकत की तरफ नजर दिलाती है, हमारी नजरों को एक बड़ी बरकत की तरफ लेकर जाती है। वो बड़ी बरकत क्या है? खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर क्या है? बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह से सताया था। और मैं एक स्कॉलर से पढ़ रहा था, उसने कहा कि परसिक्यूशन, तकलीफ में से, दुख में से, मुसीबत में से गुजरना, ये इज द लेगेसी ऑफ क्राइस्ट। यीशु ने भी दुख उठाए, मुसीबत में से, तकलीफ में से गुजरा, और जो ईमानदार तकलीफ में से गुजरता है वो यीशु को फॉलो करता है, वो खुदावंद यीशु मसीह की तरह सलीब उठाता है। जो ईमानदार दुख में से, मुसीबत में से, यीशु की खातिर मुसीबत में से गुजरता है, मुखालफतों को देखता है, वो यीशु को फॉलो करता है। वो यीशु के वर्से को जो उसने चर्च को दिया है, ये यीशु की लेगेसी है जो उसने कलीसिया को दी है कि कलीसिया दुख में से गुजरे। लेकिन जो दुख में से गुजरता है उसके लिए ही आसमान पर अजर है। और वो अजर क्या है? अजर बड़ा ही खूबसूरत है। जब स्मुरना की कलीसिया को दुनियावी तौर पर दुनिया के लोगों के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए, उस वक्त के लोग एक तरफ स्मुरना के ईमानदार हैं और दूसरी तरफ यहूदी लोग या गैर कौमों के लोग हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। इन दोनों के दरमियान मुआजना किया जाए तो उनका ईमान और मसीही लोगों का ईमान मुख्तलिफ है। मसीही लोग
जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं और गैर कौमों के लोग बहुत से खुदाओं पर जो बुत है उन पर भरोसा करते हैं। यहाँ पर इनाम जो है वो उनके लिए है जो मसीह की खातिर दुख में से गुजर रहे हैं, और वो इनाम ये है, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज जो है वो इनाम है, और वो जिंदगी का ताज वो ही दे सकता है जिसके पास जिंदगी है। खुदा के कलाम में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। गुज़श्ता दिनों में एक बहन से मिलने का इत्तेफाक हुआ, बहुत बीमार रही, कोरोना के दिनों में ठीक हो गई, खुदा ने शिफा दी, और मुलाकात हुई उनके साथ, बातचीत हम कर रहे थे उन दिनों की जब वो गुजरी। आप जानते हैं अभी कोरोना के दिनों में मुश्किल में से गुजरा, जब मुझे भी कोरोना हुआ तो हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि किस तरह कोरोना जो है वो वार करता है और किस तरह दुख में से गुजरते हैं। तो वो बहुत सीरियस क्रिटिकल हुई, वेंटिलेटर पे गई, तो वो कहती हैं कि मुझे बस एक आयत याद आती थी कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और उसने कहा कि मैं इस आयत को दोहराती थी और ये ईमान रखती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी क्योंकि मैं बेटे पर ईमान, यीशु पर ईमान रखती हूँ, वो मुझे जिंदगी देगा। इसी तरह से मैंने अपनी भी स्टोरी सुनाई थी आपको कि जब मैं बार बार वो चेक करता था ऑक्सीमीटर से अपनी वो पता नहीं इसको लफ्ज क्या बोलते हैं, मेडिकल का कोई सैचुरेशन, तो उसके वो मैं देखता था कि ये थोड़ी सी नीचे जा रही है 95 से, तो जब भी मैं देखता था नीचे जा रही है तो मुझे याद आता था बॉक्सिंग में वो जो रेफरी है जो जीत जाता है वो उसका बाजू ऐसे खड़ा कर देता है, वो जीत गया उसका बाजू खड़ा हो गया, तो क्योंकि मुझसे भी वो हिलना तो मुश्किल था तो मैं लेटे लेटे अपना बाजू ऊपर करता था। मैं कहता था यीशु ने ना मुझे भी ऐसे ये जिता देना है। तो ये है कि यीशु में फतह और जिंदगी जो है वो ईमानदारों के पास है, और जब सुमरना की कलीसिया का मुआजना दूसरे लोगों के साथ जो दुनवी खुदाओं पर, दुनवी बादशाह पर ईमान रखते थे या उससे डरते थे, उनका मुआजना सुमरना की कलीसिया के ईमान के साथ किया जाए तो वो जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं जो क्या अजर देगा, जिंदगी का ताज, हमेशा कायम रहने वाली जिंदगी। जो गैर कौमों के लोग थे जब उनके बादशाह मर जाते थे तो उसकी लाश पर भी ताज रख देते थे। बहुत सी ममीज ऐसी मिली हैं जिनके साथ ताज है या उनके जोहरात हैं, उनके जेवरात हैं, लेकिन हमारा खुदावंद जिंदा है और वो जिंदगी का ताज देता है ताकि जो उस पर ईमान रखे वो कभी हलाक ना हो, वो हमेशा जिंदा रहे, और जो इस दुख, मुसीबत और परेशानी में से गुजरता है वो जिंदगी का ताज पाता है, हमेशा कायम रहने वाली जिंदगी, परपेचुअल लाइफ, यानी हमेशा उसकी कंटिन्यूटी जो है वो कभी खत्म ना हो। कि ईमानदारों को जो जिंदगी में यीशु के साथ वफादार रहते हैं, मुसीबतों में भी, गुर्बत में भी, परेशानी में भी, जो यीशु के साथ वफादार हैं, उनका इनाम जिंदगी का ताज है। वो खुदावंद की नज़र में रिच है, खुदावंद की नज़र में अमीर है। दुनिया की नज़र में अमीरी के स्टैंडर्ड मुख्तलिफ हो सकते हैं, दुनिया की नज़र में दौलत के जो मेयार हैं मुख्तलिफ हैं, गाड़ी है, बड़ा घर है, अच्छे कपड़े पहने हैं, जेवरात हैं, तो वो अमीर है। लेकिन खुदावंद की नज़र में अमीर वो है जिसके पास ईमान की दौलत है, जिसके पास यीशु है। यीशु ने उनको कहा यू आर रिच। और जो दुनिया में अमीर थे तो देखिए खुदावंद ने कहा कि नहीं, तू कम वक्त है, तू खार है, तू नंगा है, तू अंधा है। लेकिन जो गरीब थे, जो मुसीबत में थे, लेकिन उनके पास ईमान है, तो खुदावंद के नजदीक वो अमीर है, और उसके पास इनाम क्या है, जिंदगी का ताज है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बुजुर्गों, बेटों बेटियों, हमारे लिए ये बड़ा अहम है कि जिंदा कलीसिया का अमीर होना जरूरी है, लेकिन वो अमारत क्या है, ईमान। वो अमारत दौलत नहीं है, दुनियावी दौलत नहीं है, वो ईमान की दौलत है, वो यीशु है। जिस कलीसिया में यीशु है वो रिच कलीसिया है। और अगर हमारी जिंदगी में, हमारी कलीसिया में, हमारे खानदानों में यीशु है तो इस बात को याद रखें, इस बात को क्लेम करें कि वी आर रिच।
if we have Jesus in our life, अगर हमारी जिंदगी में यीशु है, अगर दुख भी है, मुसीबत है, परेशानी है, इज़ारसानी है, हम कोई काम नहीं कर सकते, हम बड़े कारोबार नहीं कर सकते, मुखालफत हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास खुदावंद का फजल है, निजात है, वादों के वारिस है, काहिनों का फिरका, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, खास उम्मत जिसे यीशु ने अपनी जान देकर खरीदा है। आए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और उसकी शुक्रगुजारी करें कि हमारे पास यीशु है तो हम अमीर हैं, और अगर हमारी जिंदगी में यीशु नहीं है तो आए आज इस बड़ी दौलत को मांगें। बहुत से लोग जब इबादत में आते हैं तो बहुत सी चीज़ें मांगते हैं, खुदावंद हमें गाड़ी दे, घर दे, बहुत सी चीज़ें हम मांगते हैं। इस दुनियावी दौलत के साथ आज यीशु को भी दावत दें, यीशु को अपने दिल में बुलाएं, वो सबसे बड़ी दौलत है। आए दुआ करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तेरा बेटा यीशु ही निजात दहिंदा है, और तेरे कलाम में लिखा है कि जमीन आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से वो निजात पाए। तेरा शुक्र है बाप कि तूने हमें चुना है कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखें। ये फजल, ये रहम जो तूने हम पर किया है, दुनिया में अरबों लोग इससे महरूम हैं, हम इस दौलत को अपने लिए रखते हैं। खुदावंद तू हमारे दिलों में आ, हमारे साथ रहे, हमारी कलीसिया में आ खुदावंद, हमारी कलीसिया में यीशु की मौजूदगी, हमारे खानदानों में बाप तेरे बेटे यीशु की मौजूदगी हो, हमारे दिलों में खुदावंद तेरी मौजूदगी हो, ताकि हम हकीकी तौर पर खुदावंद के नज़दीक इस बात को सुन सकें, यू आर रिच। यीशु ने हमें अमीर उसी सूरत में कहा, अगर यीशु हमारे पास है, खुदावंद हमें ऐसा बनने के लिए तैयार कर यीशु के नाम से। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 393 393, यहोवा यहोवा यहोवा। इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 393 393। Yeah.
लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यहाँ पर फराहम किया ताकि हम बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। जितना वक्त हमने तेरी हजूरी में गुजारा है हमारे लिए खुदावंद ये बाबरकत वक्त है, क्योंकि तू हमारे साथ मौजूद है। खुदावंद हम में से हर एक को बरकत दे, हमें महफूज रख, इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा और हम में से हर एक को बीमारियों से, हादसात, परेशानियों से हमें महफूज रख। इन हदियाजात के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे दिए हुए में से तेरे लोगों ने तुझे लौटाया है। खुदावंद इसे कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर खुशहाली बख्श दे। ईमान में मजबूत कलीसिया बना, गवाही देने वाली जिंदा कलीसिया बना, और खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ हो। हमें तो अपनी मेज़ पर आने के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज हमारे दरमियान पादरी शहरोज साहब हैं जो बिशप आज़ाद मार्शल साहब के साथ लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में एक ख़ास मौजू पर जो अभी वो बताएंगे भी एक ख़ास डेस्क में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हर साल लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में म्यूज़िक के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है और उसके बारे में बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरी दरख्वास्त है पादरी शहरोज साहब से कि वो आएँ और उस म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें आगाह करें। यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज हम सबको ये मौका दिया कि हम खुदा के घर में आए और उसकी इबादत कर सकें। पादरी साहब का और तमाम एल्डर साहबान का भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आज आप सबको इनविक्टस कॉन्फ्रेंस के बारे में बता सकूं। जिस तरह पादरी साहब ने बताया कि लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में हर साल इनविक्टस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है, तो उसी के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूं और आप सबको उसमें शिरकत की दावत देना चाहता हूं। मेरे अजीजों, इससे पहले कि मैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं बताऊं आपको, मैं इनविक्टस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि लफ्ज जो इनविक्टस है वो लातीनी जुबान के लफ्ज से माखूज है और जिसका मतलब है नाकाबिले शिकस्त या नाकाबिले तस्कीर, या यूं कहना भी दुरुस्त होगा कि ये एक ऐसे शख्स की तरफ इशारा है जिसे हराया ना जा सकता हो या जिसे ज़ेर ना किया जा सकता हो। पौलुस रसूल कलाम मुकद्दस में हमारी तवज्जो ऐसे ही ख्याल की तरफ मबजूल करवाते हैं। जब वो रोमियो के नाम पौलुस रसूल खत लिखते हैं तो उसमें वो बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत, उसके जी उठने और आसमान पर सऊद फरमाने के वसीला से हर एक ईमानदार फतह, बल्कि फतह से बढ़कर गलबा हासिल करता है। इनविक्टस कॉन्फ्रेंस का आगाज साल 2018 से हुआ और इसके बानी बिशप आज़ाद मार्शल साहब और मिस मिशेल मार्शल साहिबा हैं। और इस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने का जो मकसद था वो अवलन ये था कि मुल्क पाकिस्तान में राइज खुदा के कलाम के मुनाफी जो गीतों की शायरी और धुनें हैं उनका तदारुक किया जा सके। और मैं ये बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि हमारे पादरी साहब, पादरी रोबन कमर साहब भी एक ऐसी ही कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रह चुके हैं जो इसी मसले के बारे में बातचीत कर रहे थे या सोच विचार कर रहे थे कि इस मसले को, यानी पाकिस्तान में जो शायरी, जो गीतों की शायरी है, इस मसले पर बात कर रहे थे कि किस तरह से हम इस मसले को सॉल्व करें या इसके लिए कुछ बेहतर हल तजवीज़ किया जाए। दूसरा मकसद जो इस कॉन्फ्रेंस का है वो ये है कि वो लोग, यानी जिस तरह हमारे यहाँ पर क्वायर मौजूद है, हमारी बहनें, बेटियां, भाई मौजूद हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो सब भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने और वो तोड़े जो खुदा ने उन्हें दिए हैं वो उन तोड़ों को मजीद चमका सकें और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ तरतीब इस तरह से होती है कि मुल्क पाकिस्तान के तुलो अर्ज से जो कलीसियाएं हैं उनमें से
नौजवानों को, मर्दों ख़वातीन को दावत दी जाती है ताकि वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, और इसके साथ साथ ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से भी थियोलॉजी के माहिर और इसके साथ साथ मौसीकी के फ़न के माहिर भी उस्ताद कराम इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हैं। और ऐसी तालीमी नशिस्तों का इनकाद किया जाता है जिसमें ना सिर्फ कलाम के बारे में, हम तो परस्तिश के बारे में सिखाया जाता है, बल्कि मौसीकी के बारे में भी उन तलबा और तालिबात को, उन नौजवानों को सिखाया जाता है। और ख़ास मकसद ये होता है कि उनको बताया जाए, उनको सिखाया जाए कि किस तरह से खुदा के कलाम के ज़ेर साया रहते हुए गीतों को तरकीब दिया जा सके और उनकी धुनें बनाई जा सकें। और आज जिस तरह से पादरी साहब ने कलाम सुनाया कुमरना की कलीसिया के बारे में, कि जो एक मसीही है उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है। इस साल जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उसका जो मौजू है वो यही है कि हमारा जो मसीही ईमान है वो क्या है, और इसी मौजू को सामने रखते हुए गीतों को तरतीब दिया जाएगा और इसके साथ साथ धुनें भी बनाई जाएंगी। हम आप सबको इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की दावत देते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आएं और इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनें। चैपल ऑफ सेंट स्टीवन एंड ऑल द मार्टर्स आपको खुश आमदीद कहने का मुंतज़िर है। आपकी कलीसिया में से 2 जो नौजवान हैं, बेटियां या बेटों में से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकते हैं, जो बाकायदा तौर पर उस पूरे हफ्ते में जो कि 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक का अरसा होगा, इसमें वो हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में शरीक रहेंगे और वो खुदा के कलाम के बारे में सीखेंगे और इसी मौजू पर रहते हुए वो गीतों को तरतीब देना भी सीखेंगे। और जो आखिरी दिन होगा यानी 4 दिसंबर बरोज इतवार, आपकी कलीसिया में से मजीद लोग हमारे साथ उस हमद और प्रस्तिश की इबादत में शामिल हो सकते हैं। और मैं आप सबको दावत देता हूं कि आप सब जरूर हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ आएं और शरीक हों और इसका हिस्सा बने। आइए और अपने उन तोड़ों को जो खुदा ने आप पर भरोसा करके आपको तफवीज़ किए हैं उनको मजीद चमकाएं और खुदा को नाम को जलाल देने के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। शुक्रिया। शुक्रिया पादी शहरोज साहब हमें आगाह करने के लिए। अगर आप में से कोई इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना चाहता है तो उसके लिए फॉर्म्स जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये 1 हफ्ते के लिए है, 6 दिनों के लिए है। और इसमें आप अगर लाहौर में हैं तो आप सुबह से शाम तक भी जा सकते हैं, और अगर आप रहना चाहें तो वहाँ पर रहने का भी इंतज़ाम है। लेकिन जो आना और जाने के लिए चाहते हैं कि हम रोज़ाना आए और जाएंगे, उनके लिए किराए का बंदोबस्त भी है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी, यानी उनको ट्रांसपोर्ट दी जाएगी ताकि वो आ जा सकें, और यहाँ से पिक एंड ड्रॉप दे दी जाएगी। इसलिए आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और आखिरी दिन जो इतवार का दिन है 4 दिसंबर को, उसमें भी आप लोग ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ज़रूर इसको दुआ में रखें और खुदावंद से रहनुमाई मांगें। अगर खुदावंद आपको ये रहनुमाई देता है कि आपके लिए ये कॉन्फ्रेंस यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, तो ज़रूर उसमें शामिल होने के लिए हमसे रब्ता करें। एल्डर साहबान आ जाए मेरी मदद के लिए ताकि हम शायर बानी को सर्व कर सकें। खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। खुदावंद यीशु ने जिस रात को करवाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है।
मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर खाने के लिए खुद को तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और हम में हमेशा बसे। खुदावंद इसी तरह इस होस्तिया के लिए और शीरे के लिए दुआ करते हैं, तो इनकी तकदीस फरमा, इनको पाक ठहरा, इनको खाने के वसीले से हम तेरे बेटे यीशु की मौत का इजहार अपनी ज़िंदगी से कर सकें और यहाँ से एक नई ज़िंदगी के साथ वापस लौट सकें, यीशु के नाम में। खुदावंद यीशु मसीह ने जिसका करवाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का खान अपनी की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज पर आने की दावत देता हूँ। खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है।
कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। जो कुछ बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। यीशु ने कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे। मुझे अपने दो, मेरी जान
अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ, उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। कोई अगर रह गया है तो जो नीचे नहीं आ सकता वो नजरा हाथ दिखाए ताकि उसके पास पहुंचा जाए। यीशु ने कहा कि जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आमीन। अपने सर को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक और अपनी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजलो करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत घटे हुए अज़ा हैं, और तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। और ऐ आसमानी बाप, हम नहायत फरोख्ती से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें और जो नेक कमाल तूने पेशकर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सबको किया करें, उसी हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूह कुदस के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुलबाद होती है। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तश करते, तेरा जलाल ज़ाहिर करते, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिम के खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।